Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. Hope you all are really doing great. So today we are going to study the most important chapter for PSU exams, where from you can expect plenty of questions, whether you are appearing for Power Grid or NTPC or any other exams like IFCO and etc. This chapter really becomes important. And what to study, I'm going to suggest you in this chapter. I have made notes in two parts so that it would be very easy for you to cut the subject and study accordingly. Like if you're studying the combination of subjects, that is law and accounts, then in law you can do accounts part 1 and other chapters along with it from accounts. Okay, guys, this was just an example. I have already told you several times that you should not focus only on one subject. You should divert yourself to various subjects, including technical and non technical. Make your own strategies, make your own combinations so that it would be really very easy for you to clear any of your PSU exams, right? So, this chapter really becomes very important for you. Accounts. First question is, which chapter? Chapter 9. Chapter 9 of the Companies Act deals with accounts of companies. It mentions various compliances, it mentions various forms and procedures which you need to comply for maintaining accounts, for maintaining books of accounts, etc. सो सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 128 से लेकर के सेक्शन 138 तक अकाउंट्स के बारे में बताए जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है दैट डील्स विद अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज. ठीक है, आप सभी को पता होगा कौन से स्केड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स. स्केड्यूल 3, सॉरी, Schedule 3 of the Companies Act फॉलो करने पड़ते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स, राइट. और Schedule 2 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है मैम. तो पहला क्वेश्चन ये बनता है हाउ टू डील विद दिस चैप्टर. पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको चैप्टर नंबर्स याद रखने पड़ेंगे. नंबर 2, आपको सेक्शन नंबर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नंबर 3, आपको डेफिनेशंस, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर में, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नंबर 4, फाइन्स एंड पेनल्टीज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नंबर 5, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर्म नंबर्स. नंबर 6, डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 7, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, they will mention that this section says this, which of the following which of the following statement is correct. And again they will give you two statements wherefrom you need to choose the correct option, or if both of them are correct you need to choose all of the above. So therefrom you can expect questions in law, whether it is company law or business laws like Contract Act, SOGS. Therefrom, you can expect question. So this is particularly the theme of your papers, of your PSU papers actually. So let's begin with this class. First question is Chapter 9 of the Companies Act deals with accounts and Section 128 to 138
अकाउंट्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, किसको किसको माना जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये जो सेक्शन नंबर है 2 सबसेक्शन 13, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स, व्हाट डज दिस मीन्स, what does this mean? This mean apart from this, books of accounts can be any other thing as company may prescribe or as board may prescribe, right? But it includes what? Receipts and payment, assets and liabilities, basically PL बैलेंस शीट, ठीक है, और परचेज एंड सेल्स बुक्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स। It includes this. Apart from this, anything could be considered as books of accounts. Okay, fine, ma'am. Now, where you need to place the books of accounts? आपकी कंपनी का books of accounts कहाँ place होना चाहिए? Obviously, at the registered office of the company. जो आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी, जो आपके MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगी आपकी, वहां आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं चाहें एनी अदर प्लेस इन इंडिया, वो भी रख सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं और रखना चाहें अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिस तो आप रख सकते हो, लेकिन आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको AOC 5 जो है ROC को जमा करनी पड़ेगी। दिस फॉर्म इज टू बी सबमिटेड टू ROC। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा, क्या हम इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हमें लाइक ये सब जो पेपर वाउचर्स वगैरह जो होते हैं, मेरे रिसीट्स और पेमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये मैं क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, आप मेंटेन कर सकते हो। 7 कंडीशंस आर देयर। ये इस एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी इंडिया में एक्सेस इसका होना चाहिए, देखने में लेजिबल होना चाहिए, मतलब कि कुछ गड़बड़ नहीं दिखे, मतलब नॉर्मल आदमी लोगों के लिए लेजिबल होना चाहिए, मतलब इजीली रीडेबल। एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट ही अलाउड है, कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो इसके अंदर में, ठीक है मैम। उसके बाद अगर अकाउंट्स ब्रांच से अगर रिसीव होती है, जैसे अगर एक कंपनी है उसकी सेवरल ब्रांच है, तो जो ब्रांच ऑफिस होती है अपनी सारी अकाउंट्स कंपनी को भेजती है, तो वो अनऑल्टर्ड होनी चाहिए, यहाँ तक पहुंचने तक कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर रिट्राइवल हो सके, स्टोरेज एंड प्रिंट आउट, ठीक है, मतलब वापस से उसको आप रिट्राइव कर पाओ, कहीं डिलीट विलीट नहीं हो जाए, आप उसकी प्रिंट आउट ले पाओ, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हो। सर्वर जो होगी वो इंडिया में लोकेटेड होगी। और एनुअल फाइलिंग टू ROC, इन्फॉर्म नेम, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, IP एड्रेस, क्लाउड डिटेल्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ROC को बतानी पड़ेगी कि हमारा जो सर्वर है जिसके अंदर में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करके रखे हैं वो इंडिया में ही है, वो चीज अपने को ROC को बतानी पड़ेगी। ये जो चीज है ये आपसे, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया है इसमें से पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन AOC 5 के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और डेज, विद इन कितने डेज? विद इन 7 डेज। अच्छा, याद रखिएगा अक्रूवल बेसिस पे यानी ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ, भले ही उसका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, बट आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद में डबल एंट्री बुक कीपिंग इज कंपलसरी, ठीक है मैम, डबल एंट्री बुक कीपिंग इज कंपलसरी। अगर आपकी ब्रांच इंडिया से बाहर है, अगर फॉरेन में है कहीं पे, तो उन लोगों को एक पीरियोडिकल रिटर्न सेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे? कंपनी की जो हेड ऑफिस है हमारे इंडिया में, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर आपको सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हु कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मैंने ये डायग्रामेटिकली आपको बता दिया है कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ROC मतलब आप समझ लो डिपार्टमेंट जो जितने भी होते हैं वो तो कर ही सकते हैं, ROC हो गई, सेबी हो गई, CG के कोई अपॉइंटेड ऑफिसर हो गए, वो लोग कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टर्स लोग कर सकते हैं, हमारी होल्डिंग कंपनी जो है वो कर सकती है, और मेंबर भी कर सकते हैं। अगर आर्टिकल्स ने उसको ऑथराइज किया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे मेंबर भी क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि विथ हु ऑफ द फॉलोइंग कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहां पर चुपके से आपको एक मेंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, मेंबर्स भी दे दिया जाएगा,
ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल लिख देंगे, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टिक करके आना है। लेकिन अगर खाली मेंबर्स लिखा गया तो आपको मेंबर्स नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन अगर आर्टिकल ने ऑथराइज किया तो डेफिनेटली दे कैन। ठीक है, डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे कर सकते हैं और या फिर एनी अदर प्लेस पे कर सकते हैं। बिजनेस आवर्स जो है 9 से 6 के बीच में ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी को डायरेक्टर के डिमांड पे 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ रिटन रिक्वेस्ट, डायरेक्टर को रिटन रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी। उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड इंडिया है तो। ठीक है, उसके बाद में इट शैल बी सॉर्ट बाय डायरेक्टर हिमसेल्फ। डायरेक्टर अपने किसी भी अटॉर्नी को, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकते, उसको खुद ही इंस्पेक्ट करना है तो कर ले, भाई तुम्हारे दिए हुए लोगों को हम इंस्पेक्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कैसे हो सकती है, ऑथराइज पर्सन जो है, जो बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब होल्डिंग कंपनी के अंदर में, ठीक है, होल्डिंग कंपनी डेबिट गुरु लिमिटेड है। ठीक है, और मेरी सब्सिडियरी कंपनी जो है, सपोज कर लीजिए पीएस लिमिटेड है। ठीक है, मुझे इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करनी है। इसमें जो मेरे डायरेक्टर हैं मिस्टर अश्विनी, ठीक है, ये क्या करेंगे, मैं और भी डायरेक्टर हैं, मिस अंजलि, ये क्या करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन में मिस अंजलि को ऑथराइज करे तो अंजलि मैडम क्या कर सकती हैं, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकती हैं, इंस्पेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, टाइम लिमिट कितना होना चाहिए, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने पढ़ा है ऊपर में, जो मेरी रिसीट्स और पेमेंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज, और ये सारी जो मेरी कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कितने दिन तक हम मेंटेन रखते हैं, मेंटेन रखना हमें पड़ेगा, मिनिमम 8 ईयर्स रखना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लेकिन अगर सीजी बोल दिया कि आपको ज्यादा दिन तक रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि आपको ज्यादा दिन तक रखना है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा दिन तक रखना पड़ेगा। अच्छा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपने नहीं रखा तो डिपार्टमेंट्स किसको पकड़ेंगे कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल तक मेंटेन नहीं रखे, एमडी को तो पकड़ेंगे, सीएफओ को भी पकड़ेंगे, होल टाइम डायरेक्टर को पकड़ेंगे। याद रखिएगा, यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं है, और ये एक बहुत सी एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं है, ये एक बहुत मतलब लूप होल है कंपनीज एक्ट के अंदर में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, दे डोंट रिक्वायर टू अपॉइंट, वो लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यूटीटी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस के जो इंचार्ज हैं वो, और कोई भी पर्सन अगर कोई बोल दे, ये बोल दे कि चलिए डेबिट गुरु की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोर्ड ने बोला मिस्टर अश्विनी आप रखिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल तक मेंटेन रखने की, तो उस केसेस में अश्विनी जी जो हैं, ही विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंगली। ओके फाइन, लेकिन अगर आपने नहीं रखा उस केसेस में फाइन कितना हो जाएगा, मिनिमम 50,000 हो जाएगी और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 lakhs की आपके ऊपर में पेनल्टी लग सकती है। ठीक है मैम। अब सेक्शन 129 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव स्टडीड सेक्शन 128 wherein we need to place wherein we have discussed about the place of books of accounts, okay, who can inspect, and what is the time limit for preservation, and person who are responsible to maintain the books of accounts. Now we will study about the financial statements. Now what is financial statement, guys? Financial statements, section number, again this is very important. When we talk about financial statements, what does it includes? It includes balance sheet, PL, or income and expenditure in case of NGOs and all, cash flow statement, statement of changes in equity, and schedules and explanatory statements on accounts, means notes. ठीक है,
एक्सेप्शन दी गई है ओपीसी और डोरमेंट कंपनी को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने सुना होगा ना कि हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर, अपने अकाउंट्स को क्लोज करने पड़ते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। तो उस केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, आपको बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्केड्यूल्स एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स ऑन अकाउंट्स, ये सारी चीजें देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शुड कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन टू एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर वैल्यू। ठीक है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट करने चाहिए। इनको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करनी पड़ेगी। कंप्लाई विद स्केड्यूल 3, मैंने आपको बताया अकाउंट से जो डील करता है वो स्केड्यूल 3 बताता है। और बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक अलग एक्ट के अंदर में बनी है, तो अगर उनका एक स्पेसिफिक जो एक्ट अगर कुछ बोलता है तो वो सारी चीजें भी इनको कंप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इन केस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कंप्लाई विद शेड्यूल 3 ऑन दोज मैटर विच आर इनकंसिस्टेंट विद देयर ओन एक्ट। यानी अगर शेड्यूल 3 में कुछ लिखा है, ठीक है, दैट इज इनकंसिस्टेंट टू देयर ओन एक्ट, तो उनका जो ओन एक्ट होगा वो ज्यादा मतलब वो उस चीज को वो कंप्लाई कराएंगे, मतलब वो शेड्यूल 3 के प्रोविजंस को फिर नहीं मानेंगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो कौन सी कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कंप्लाई विद शेड्यूल 3, सिर्फ शेड्यूल 3 उसी मैटर पे कंप्लाई करेगी जो कि उनके स्पेसिफिक एक्ट के अंदर में मतलब उसका क्लैश नहीं होना चाहिए, तभी वो कंप्लाई कर सकती है। ठीक है, सारी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे और आरओसी में जमा देनी पड़ेगी हर साल को, हर साल इन फॉर्म एओसी 4। जिस कंपनी की सब्सिडियरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो हम लोग फॉर्म एओसी 4 सीएफएस के अंदर में जमा करेंगे। ठीक है, सारी कंपनी, एवरी कंपनी हैविंग सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, उनको एक एनेक्शर लगाना पड़ेगा इन फॉर्म एओसी 1। ठीक है, टू द फाइनेंशियल प्रिपेयर सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी इन एओसी 4। ये बेसिकली एओसी 1 जो है वो आपका, जो हम लोग देखिए, हम लोग एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं, इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी एजीएम का डेट क्या होगा, और जो हमारी जो ड्राफ्ट एनुअल अकाउंट्स है और डायरेक्टर्स रिपोर्ट है अलॉन्ग विथ एनेक्शर्स, इसको क्या करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं। अब जब जनरल मीटिंग एजीएम मेरी कंडक्ट होती है जिस दिन को, उस दिन ये जो सारे चीजें हैं शेयर होल्डर इनको फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किससे, आरओसी के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, और जो कंपनी की सब्सिडियरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है आरओसी के पास, हम सीएफएस कंसोलिडेटेड वाला भी फाइल करेंगे और स्टैंड अलोन वाला भी फाइल करेंगे। एओसी 4 जो नॉर्मल स्टैंड अलोन वाला होता है वो भी फाइल करेंगे और सीएफएस भी फाइल करेंगे। ठीक है मैम, समझ गए। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अडॉप्ट होता है एजीएम में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है मैम, समझ गए। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और इंड एस 12, ये जो है अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड टैक्सेस, अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड टैक्सेस जो है ये इन सारी कंपनीज के लिए क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड टैक्सेस जो है इन सारी कंपनीज के लिए क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है एएस 17 के अंदर में, ये गवर्नमेंट कंपनी एंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन जो है, ये सारी चीजें आपको वन लाइनिंग में पूछ सकते हैं वो लोग कि ये क्या, गवर्नमेंट कंपनी अगर जो एंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन है उसके लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या मतलब एग्जेम्प्टेड, कौन सी कंपनीज के लिए एग्जेम्प्टेड है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस उनको अप्लाई नहीं करेगा। किसको अप्लाई नहीं करेगा, जिसके एक होल्डिंग कंपनी है जो 100% अपनी सब्सिडियरी में, ये इसकी 100% सब्सिडियरी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसकी 100%, अगर ये वाली जो कंपनी है अगर इसकी सब्सिडियरी है तो कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फाइल करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एक होल्डिंग कंपनी जो 100% नहीं, जो सिर्फ सब्सिडियरी है और उन्होंने क्या ले लिया है, अप्रूवल ले लिया है किससे, अपने मेंबर से, उस केसेस में रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, सब्सिडियरी लिस्टेड एनीवेयर, कहीं कहीं लिस्टेड है, ठीक है, एंड इफ अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी डज कंसोलिडेशन, ओके फाइन, अगर सब्सिडियरी कहीं और पे लिस्टेड है, ठीक है, और उस केसेस में क्या होता है, जो उसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है अगर कंसोलिडेट करती है तो, और ये सब फालतू की बातें हैं, अगर किसी की सब्सिडियरी होल्डिंग है तो ऑब्वियसली उसकी होल्डिंग कंपनी अगर कर रही है तो उसको सब्सिडियरी कंपनी को करने की जरूरत नहीं है, इसका कहने का यही मतलब है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी को ही बोल रहा है अगर आपकी कोई सब्सिडियरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको सीएफएस फाइल करनी पड़ेगी, इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, देयर आर होल्डिंग इन ईच अदर, ठीक है, वो चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ये चीजें ऊपर समझा दी है। सेक्शन 120 और इसकी फाइन जो है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर जो है वो सेम है, एमडी, WTD, ये सारी चीजें जो मैंने सेक्शन 128 के अंडर में था वो भी इस सेक्शन के अंदर में है। सेक्शन 129A, सेक्शन 129A क्या बोलता है गाइस, ये बोलता है सीजी उन सर्टेन क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी को प्रेस्क्राइब करेगी जिन लोगों को फाइनेंशियल रिजल्ट्स विथ लिमिटेड रिव्यू, देखिए अभी फिलहाल जो है लिस्टेड कंपनीज को मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर 4 क्वार्टर्स, ठीक है, 4 क्वार्टर्स, पहला क्वार्टर होता है आपका जून, दूसरा क्वार्टर होता है आपका सितंबर, तीसरा क्वार्टर होता है आपका दिसंबर और चौथा क्वार्टर होता है आपका मार्च, ठीक है। तो हर हर क्वार्टर, ये जो 3 क्वार्टर है इसके अंदर में हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एफआर जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट प्लस लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, क्योंकि ये अनऑडिटेड फिगर्स रहते हैं यहाँ पर, तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के साथ में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करते हैं, ठीक है मैम, समझ गए, एकदम सही बात है। लेकिन मार्च जो है मेरा जब फिगर ऑडिटेड हो जाता है, इसकी जो डेट है 30 मई होती है जमा करने की, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिजल्ट, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहता है और यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट हो जाती है, ठीक है। तो यानी लिस्टेड कंपनीज को जो है विद इन 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी ऑडिट कंप्लीट करानी पड़ती है रादर देन अनलिस्टेड कंपनीज। जी मैम, समझ गए। तो अब क्या ये लोग लेकर के आ रहे हैं, ये लोग ये लेकर के आ रहे हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उसको अभी तक ये आया नहीं है, बट आप ये जान करके रखो कि जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनके लिए ये जो है आपका ये वाला जो सिस्टम होता है लिस्टेड कंपनीज का वो एप्लीकेबल हो जाएगा और वो उन लोगों को आरओसी को जमा करनी पड़ेगी अपनी एलआरआर और ऑडिट रिपोर्ट एज द केस में भी, ठीक है मैम, समझ गए। सेक्शन 130 जो है वो कहता है रीओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एनसीएलटी ऑर्डर। एनसीएलटी एक ट्रिब्यूनल है, दैट इज नेशनल, यार एक सेकेंड गाइस, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, नॉट वर्किंग, माय पेन इज नॉट, अच्छा, एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो कंपनीज में से रिलेटेड जो मैटर्स है, पहले क्या होते थे, हाई कोर्ट होते थे, ठीक है, हर मैटर वेदर इट इज मर्जर अमालगमेशन या फिर कोई भी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता था डायरेक्टर्स का तो लोग जाते थे हाई कोर्ट के पास में, और आप सभी को पता है कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही होता रहता था, तो गवर्नमेंट ने सोचा एक ट्रिब्यूनल अलग से क्रिएट किया जाए जो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ रिलेटेड मैटर्स देखेंगे, तो एनसीएलटी तभी फॉर्म में आया। तो अगर एनसीएलटी चाहे ऑन एप्लीकेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर सेबी को या फिर आईटी अथॉरिटीज मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी या फिर किसी भी पर्सन के एप्लीकेशन से एनसीएलटी को ये लगता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करना पड़ेगा, मतलब वापस से खोलना पड़ेगा क्योंकि वो बंद हो जाती है, आप उसको बंद करके फाइल करके वापस जमा कर दो तो दैट इज द एंड।
लेकिन अगर रीओपन करने के लिए अगर उनका एनसीएलटी ने ऑर्डर कर देता है तो आपको अपने अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, रीओपन कराना पड़ता है। ग्राउंड्स क्या होने चाहिए, कब एनसीएलटी इस चीज को अप्रूव करेगा, अगर आपने जो पुराने जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर किए हैं, याद रखिएगा आपने कुछ फ्रॉड किया है उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रिपरेशन करे हैं, तो एनसीएलटी बोलेगा भैया भाई साहब अपनी अकाउंट्स को रीओपन करिए, ठीक है। या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है वो मिसमैनेज कास्टिंग है, जो अपने अकाउंट्स में जो कास्ट किए हैं दैट इज मिसमैनेज्ड, एंड उनको डाउट है ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है, अगर उनको डाउट है तो एनसीएलटी क्या करेगा, उसको रीओपन कराएगा। और ऑर्डर पास करने से पहले सीजी सेबी और जो भी अथॉरिटी ने उनको अप्लाई किया है या फिर दूसरे जो अथॉरिटीज हैं जो एसोसिएटेड हैं कंपनीज से, उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट दिया जाएगा, ठीक है। और एनी रेगुलेटरी बॉडीज एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट, कि आप आइए बताइए कि इसके अंदर में क्या क्या आपको गलत लगता है, ठीक है। और जो रिकास्टेड जो फिगर्स होंगे, जो वापस रीओपन करके जो रिकास्ट इन लोगों ने कराएगा वो फाइनल है। और ये जो रीओपनिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मैक्सिमम आप लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स का कर सकते हो, उससे ज्यादा का कर सकते हो अगर ऑर्डर्ड बाय सीजी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है इन्वेस्टिगेशन का, तो उस केसेस में लास्ट 8 ईयर्स से भी ज्यादा का आप बुक्स खुलवा सकते हो। जी मैम, मतलब रिकास्ट करा सकते हो, रीओपन करवा सकते हो। और ग्राउंड्स याद रखिएगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा इज करेक्ट। सेक्शन 130 टॉक्स अबाउट रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एनसीएलटी ऑर्डर, एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 दीज आर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन बी इज एलिजिबल फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रीओपनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप वॉलंटरली रिवाइज भी कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, या बोर्ड रिपोर्ट का, आप चाहो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर बोर्ड को ऐसा लगता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है या फिर बोर्ड रिपोर्ट बनी है वो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंगली नहीं बनी है, या 134 आपका एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताता है, बोर्ड्स रिपोर्ट के बारे में बताता है, तो उस केसेस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर बोर्ड रिपोर्ट को एनसीएलटी से अप्रूवल लेकर के, और कंपनी इस केस में अप्लाई करेगी कि भैया हमें फिर से अपने अकाउंट्स का रिवाइज करने दो, मुझे ऐसा लगता है सेक्शन 129 का मतलब शेड्यूल 3 का या सेक्शन 129 का हमने कंप्लायंस नहीं किया है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, आपको कंपनी लॉ के अंदर में मतलब आपको एनसीएलटी क्या करेगी, आपको रिवीजन करने का मौका देगी, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकती है, मैक्सिमम 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स का दे सकती है। वाह बेटा, आप चाहो तो आप लास्ट 8 ईयर्स का भी खुलवा सकते हो, लेकिन अगर सीजी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो 8 ईयर से ज्यादा का भी खुलवा सकते हो, लेकिन जब हम खुद से रिवाइज करना चाहें तो आप हमें सिर्फ 3 साल का मौका दे रहे हो, उससे आगे काम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते भाई, हम नहीं कर सकते, हमारे पास पावर ही नहीं है। ओके, नाउ एनसीएलटी क्या कर सकती है, जैसे ही इनको एप्लीकेशन रिसीव करेगी वो अपने सीजी को यानी एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और जो दूसरी अथॉरिटीज है लाइक सेबी, अगर आपकी लिस्टेड कंपनीज है तो सेबी को देगी और आईटी अथॉरिटी को देगी, उनका रिप्रेजेंटेशन मांगेगी कि क्या हमें इन लोगों को रिवाइज करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। और financial statement or board report, ठीक है, have been circulated by the company to its member, then the revision of finance shall be limited only to make necessary with section 129 and 134 respectively. Obviously yaar, I have already circulated my books of accounts and financial statement and annual report earlier to all the members, तो उस केसेस में मैं कैसे रिवाइज करूंगी, मैं रिवाइज तभी कर सकती हूँ अगर मैंने कंप्लायंसेस नहीं किए हूँ सेक्शन 129 के अंडर में या सेक्शन 134 के अंडर में, यानी मैंने शेड्यूल 3 या किसी इंडेस या एएस को फॉलो नहीं किया हो, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे रिवीजन का ग्रांट मिलेगा। दिस इज द ग्राउंड ऑन विच आई कैन रिवाइज माई books of accounts and financial statement, well not books of accounts, my financial statement. Now central government क्या कर सकती है अपने और भी अगर कुछ चाहे इसके अंदर में, इस सेक्शन के अंदर में ऐड कर सकती है। तो एक शॉर्ट एनालिसिस मैंने बनाई है अंडर मतलब क्या डिफरेंस होता है सेक्शन 130 के अंदर में 131 के अंदर में।
सेक्शन 130 क्या है? 130 में बोल रहा है, यहाँ 130 होगा या 131 होगा, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पर एनसीएलटी ऑर्डर करेगा तब मेरे को रीओपन करनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर मेरा वॉलंटरी रिवीजन है ऑन अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीजीएसआईआर जो है वो अप्लाई मेरे करेंगे, ठीक है। सीजी सर जो है मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर है, यहाँ पर एसआईआर मैंने ये लिखा है कि आपके सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पर कंपनी खुद अप्लाई करती है। यहाँ किसको करती है? दोनों में ही एनसीएलटी को करती है। ये ग्राउंड्स हैं दोनों के अंदर में, और मैक्सिमम 8 प्रीसीडिंग ईयर्स का, मैंने बोला यहाँ पर 3 प्रीसीडिंग, एनी चेंजेस टू बी मेड, एनी चेंजेस may be made, यहाँ पर any changes may be made, यहाँ restricted to ensure only with the compliance of section 129 and 134. So this was the first class of accounts. We will be continuing this in the next class. So thank you for for having so patience and bearing me so long. Bye bye, take care, all the best.